Good morning, students. Now, today this is the fifth session in the chapter electrochemistry, and the today objective is we are going to learn about the molar conductivity. बच्चों आप सबको पता है there are few words which are very important. Resistance, you have already studied about it in class 10th. आपने पढ़ा है कि किसी भी वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है then there will be resistance in the metallic wire, and you know that R is directly proportional to the length of wire. R is inversely proportional to the area of cross section of wire. And what is this R? This is resistance. L for length, A for area of cross section of wire. If this sign of proportionality is removed, a constant is here, that is rho. Then this rho is called resistivity. इसको हमने क्या कहा था? Resistivity कहा था. You have already studied about it in class 10th. So now, if we take the inverse of रेजिस्टेंस का अगर इन्वर्स लोगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा? कंडक्टेंस मिलेगा. ओके. और अगर आप रेसिस्टिविटी का इन्वर्स लोगे तो आपको क्या मिलेगा? कंडक्टिविटी मिलेगा. इज इट क्लियर? इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज कंडक्टेंस एंड इन्वर्स ऑफ रेसिस्टिविटी दैट इज कंडक्टिविटी. कंडक्टेंस को बच्चों हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं. कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रीक वर्ड कप्पा का यूज किया जाता है. दिस इज कप्पा. सो देयर आर टू ग्रीक वर्ड्स. दिस इज रो. ये आपका रो है, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी. तो यहाँ पर एक हम यूनिट डिराइव करेंगे रेसिस्टिविटी के लिए, और रेसिस्टिविटी को पहले डिफाइन कर ले. बच्चों अगर आप देखो तो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इंटू ए बाई एल. सो इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 सेंटीमीटर, अगर L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर ले लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन दिस whole quantity will become 1. In that case, resistance is equal to resistivity. It means we can define that resistivity is resistance when the length of wire is 1 centimeter and the area of cross section is 1 centimeter square. Is it clear? Now, what will be the unit of resistivity? We know that the unit of resistance is ohm, and unit of area is meter square, and the unit of length is meter. So the unit of resistivity will be ohm meter. Is it clear? Okay. So you can see here it is already written. आपको इस सारे स्लाइड्स में बच्चों मिल जाएंगे जो अभी तक हमने आपको समझाया. Now we are going to discuss about conductance and conductivity. Just see, conductance is the inverse of resistance and conductivity is the inverse of resistivity. Then we know if the formula is R is equal to rho into L by A, and if we are taking the reciprocal of resistance, then the reciprocal of resistivity, and this term is inversed A by L. Okay. So 1 by R is called conductance, that is denoted by Z. 1 by rho is denoted by conductance K. Is it clear? My dear students, L by A, this is called cell constant. इसको हम लोग cell constant कहते हैं, and this term cell constant is denoted by G star. It is denoted by G star. Okay. So here A by L. So now you can find the unit for kappa. Kappa is what? Conductivity. तो बच्चों जैसे आपने डिफाइन किया था कि अगर रेजिस्टेंस कब, रेसिस्टिविटी की बात कब होती है? जब लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो. तो सिमिलरली कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस व्हेन द लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यूनिट, व्हाट विल बी द यूनिट? सो बच्चों कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो सीमेंस होता है. सीमेंस inverse of ohm. You may write it ohm meter. Ohm
इनवर्स ऑफ ओम, ओम पर मीटर पर ओम, इसको इनवर्स कर दिया। अब इसका जरा सा कप्पा का आप यूनिट डिराइव करिए, तो कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू लेंथ बाय एरिया। तो कंडक्टेंस का यूनिट हो गया सीमेंस, एस से डिनोट कर दिया। लेंथ का यूनिट हो गया मीटर, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। सो व्हाट विल द यूनिट, एस पर मीटर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है बच्चों, जब लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सो हैव यू गॉट द आइडिया ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस? Okay, so this is just what are the taught by me. Kappa, that is the Greek word kappa, that it is used for conductivity, and conductivity is also called a specific conductance. Okay, it is the inverse of resistivity. Now we know that the materials are classified on the basis of their conductance. Some are conductors, some are insulators, some are semiconductors. Dear students, generally all the metal and their alloys are metals. Non-metals like carbon black or graphite are good conductors. And there are some organic polymers. It is given in your NCERT book. Organic polymer बच्चों कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको कंडक्टिविटी शो करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख लो एसिटाइलिन, ठीक है, ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था मैक डियारमिड एंड हीगर एंड सिराकावा के द्वारा, और इसके लिए इन लोगों को ईयर 2000 में नोबेल प्राइज भी मिला था। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था कि एसिटाइलिन गैस कैन बी पॉलीमराइज्ड, उसको पॉलीमराइज्ड करके पॉली एसिटाइलिन हम बना सकते हैं। और व्हेन इट इज एक्सपोज टू वेपर्स ऑफ आयोडीन, अगर आयोडीन वेपर के साथ इसको एक्सपोज किया जाए तो इसके पास मेटेलिक लस्टर के अलावा इट ऑल्सो गेट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिविटी। तो बहुत सारे कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स है, जैसे पॉलीएसिटाइलिन, पॉलीएनाइलिन, polypyrrole, polythiophene. These are the names of the organic polymers which have conductivity. So अगर आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है जहां आपको कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के भी नाम हो सकते हैं, वेदर दीज आर कंडक्टर और नॉट, यू हैव टू राइट these are the conductors, they have the conductivity. Okay, now but कंडक्टेंस दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ कंडक्टेंस। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें जस्ट वी टॉक्ड अबाउट द कंडक्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टेंस। मेटेलिक कंडक्टेंस कहा जाए, एक मेटल में आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मेटल में कंडक्टेंस हो रहा है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में तो बच्चों जो कंडक्टेंस है वहाँ पर तो इनसाइड द सॉल्यूशन देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनसाइड द सॉल्यूशन देयर आर द आयंस which are produced by the electrolytes. So what are the difference between metallic and electrolytic conduction? Conductance is of two types, metallic conductance or metallic conductance and electrolytic conductance. metallic conductance में बच्चों जनरली ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में मूवमेंट ऑफ आयन होता है। किसी कंटेनर में अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोड है, तो इनसाइड द सॉल्यूशन देयर इज द मूवमेंट ऑफ आयंस। स्पेशली अगर आप मेटेलिक कंडक्टेंस में देखो तो किसी भी प्रकार से कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन अपना फ्लो करता है। लेकिन आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, देयर इज अ चेंज, डिकम्पोजिशन होता है, और आपको ऑलरेडी जो आयंस होते हैं सॉल्यूशन से दे आर डिपोजिटेड एट द इलेक्ट्रोड ऑल्सो। तो वी कैन से दैट इन मेटेलिक कंडक्टेंस there is no transfer of any matter, but in case of electrolytic conductance transfer of ions take place. तो मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस एक और है बच्चों कि मेटेलिक कंडक्टेंस जो है डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि एनर्जी देने से आपको फ्रिक्शन से और हीटिंग इफेक्ट आती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को अपोजिशन मिलता है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन पार्टिकल्स के बीच में स्टार्ट हो जाती है। और इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ जाता है, जिसके कारण कंडक्टेंस आपको इंक्रीज कर जाता है। इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट की टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, conductance, conductivity about the metallic conductor.
नाउ हाउ विल वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। किसी एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में सबसे बड़ी जो समस्या आपके सामने आती है कि हमारे पास एक बीकर होता है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। अब इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कोई इलेक्ट्रोड है और इस इलेक्ट्रोड का आपको पता करना है, इस इलेक्ट्रोड के बारे में आपको पता करना है कि अब कितना इसके अंदर कंडक्टेंस होगा, कितना इसके अंदर रेजिस्टेंस होगा अगर दो इलेक्ट्रोड्स इसके अंदर डाले गए हैं। तो दिस इज अ टाइप ऑफ डिफिकल्टीज विच आर फेस्ड, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिकली जो डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है in case of to find the measurement of conductivity of ionic solution। तो पहला तो हमारा प्रॉब्लम ये होता है बच्चों की, अगर डायरेक्ट करंट हम यूज करते हैं तो उस समय आपको जो कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन है वो आपको चेंज कर जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने अल्टरनेटिंग करंट का यूज कर लिया। दूसरा जो है कि a solution cannot be connected to the bridge like a metallic wire। जो आपको व्हीट स्टोन ब्रिज होता है या जो भी मेथोडोलॉजी आप अप्लाई करते हो तो वायर कैन बी इजिली कनेक्टेड, उसको आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन एक कंडक्टर इलेक्ट्रोलिटिक सेल को आप किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, तो एक प्रॉब्लम ये आती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ आपको डिज़ाइन किया गया कंडक्टिविटी सेल। ये आपका स्पेशल टाइप ऑफ कंडक्टिविटी सेल है जिसको डिज़ाइन किया गया। इस कंडक्टिविटी सेल में बच्चों जो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स है यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा उसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखेंगे। मैं इसको दूसरे इमेज से आपको बताता हूँ। सपोज करिए कि आपका ये एक कंडक्टिविटी सेल हम बना रहे हैं। दिस इज द कंडक्टिविटी सेल। बहुत ध्यान से समझना क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आपको यहीं से मिलेगा। नाउ इन दिस केस द लेंथ ऑफ, ये आपको दो इलेक्ट्रोड है इसमें। मान लीजिए इधर का फेस जो है ये फेस आपका इलेक्ट्रोड है और एक इस साइड का फेस इलेक्ट्रोड है। इसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। अब ये इलेक्ट्रोड है, जो लेंथ है यहाँ पर वो 1 सेंटीमीटर है, इसका ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है, हाइट 1 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियसली अब आपको पता चल गया होगा कि डिस्टेंस जो L बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स, इस इलेक्ट्रोड्स और इस इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इस फाइनली इसको आप किस बैटरी या सेल से कनेक्टिविटी दे दीजिए तो आपको देखो इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा होगा इसकी वॉल्यूम कितनी होगी बच्चों, वॉल्यूम हो गई 1 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस था, लेंथ बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रोड्स, ऑब्वियसली इट इज जस्ट लाइक ए क्यूब, तो वॉल्यूम विल बी 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 cubic centimeter, and you can say that it is equal to 1 milliliter। It means when the distance between the two electrodes is 1 centimeter, area of cross section is 1 centimeter square, and the electrolytes which is filled inside this electrolytic cell having volume 1 milliliter। So in this case the conductance of this electrolytic cell is called conductivity। इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी कहेंगे। ओके तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है। सबसे पहला है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। जब आप मोलर कंडक्टिविटी और इसमें करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, कि आपके जो इलेक्ट्रोड्स है उसका एरिया कितना आपने लिया। थर्ड पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कि इसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है। फोर्थ पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट। दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जब आप कंडक्टिविटी डिफाइन करते हो तो डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम बिकम्स 1 मिलीलीटर। यहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। उस केस में जो कंडक्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। फार्मूला बाकी सब जैसे आपने मेटेलिक वायर के केस में पढ़ा था कप्पा का,
उसी तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला सेम होगा। लेकिन अब हमारे सामने है कि हम कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस तब बता सकते हैं व्हेन वी हैव रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। हमारे पास रेजिस्टेंस तो हो, तो रेजिस्टेंस कैसे पता करेंगे? उसके लिए बच्चों एक हमारे पास आप फिजिक्स में पढ़ोगे, वी हैव अ सेटअप दैट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में बच्चों कुछ इस तरीके से सेटअप होता है। 4 रजिस्टर्स आर देयर। R1 आपका जो होता है रियोस्टेट होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। R2 जहां पर होगा वहां पर आपको अपनी कंडक्टिविटी सेल्फ फिट करनी है, R3 और R4। So these R3 and R4 in the series combination, R2 and R1 in the series combination. Okay, or you can say that R1 और R3 को आप सीरीज में मान ले चलो, यहाँ पर नहीं, R2 और R1 इन सीरीज एंड R3 एंड R4 इन सीरीज, बिकॉज ये पॉइंट यहाँ से आपका है मेन, जो आपका ऑक्सीलेटर है, जो आपको सप्लाई ऑफ पावर है वो O है। तो और P आपका डिटेक्टर है। जब आप बच्चों इस O से यानी AC पावर सप्लाई जब दोगे तो डिटेक्टर में आपको डिफ्लेक्शन होगा। आपको रेजिस्टेंस को, वेरिएबल रेजिस्टेंस को इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि फाइनली जो डिटेक्टर है वो 0 बताना शुरू कर दे। ठीक है ना? इस तरीके से बैलेंस करना है कि आपको नो करंट पासेस थ्रू द डिटेक्टर। तो जब इससे करंट पास नहीं करेगा उस सिचुएशन में आप देखोगे एक फॉर्मूला है, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। यू विल स्टडी अबाउट दिस व्हीटस्टोन ब्रिज ऑल्सो इन फिजिक्स। तो यहाँ से आपको R2 की वैल्यू निकल जाएगी। जस्ट यू हैव टू स्टडी हियर व्हाट इज द मेथोडोलॉजी टू फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल। तो यहाँ पे हमें ये जो सेल लगा रखा है, हमें उसकी क्या मिल जाएगी? रेजिस्टेंस मिल जाएगी, R2 की वैल्यू मिल जाएगी। जब R2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी बच्चों, तो अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी और जनरली जो अभी हमने कंडक्टिविटी पढ़ी, उस कंडक्टिविटी पढ़ा उसके बारे में। अब जरा इस फिगर को ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमने लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिमिट किया था 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखा था। फाइनली इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा था वो 1 ml था, 1 मिलीलीटर था। ओके, नाउ द चेंज हम इसमें कुछ करने जा रहे हैं। अब चेंज क्या करते हैं, देखो इस बार हम क्या करते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड विल बी फिक्स। 2 इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा बच्चों वो हम फिक्स रखेंगे, दैट इज 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोड 2 बनाना है। तो मैं फिर से उसी 2 फेस को, ये हमारा फेस एक इलेक्ट्रोड होगा, ये फेस हमारा इलेक्ट्रोड होगा, इस फेस को हम कनेक्ट कर देंगे सेल के, इस फेस को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर जो डिस्टेंस है बच्चों, दिस डिस्टेंस विल बी 1 सेंटीमीटर, बट नाउ इन दिस केस दिस ब्रेथ and this height is not equal to 1 centimeter. अब what will happen? Distance is 1 centimeter, but the volume inside the inside this electrolytic cell, ये आपका 1 सेंटीमीटर या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रेथ और हाइट जो है आपका डिफरेंट है। तो इस सिचुएशन में एरिया आपका डिफरेंस हो गया इलेक्ट्रोड्स का, तो हम वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को मान लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू V मिलीलीटर और यू कैन से V क्यूबिक सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है। बच्चों मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है, मोलर मीन्स 1 मोल। देखिए कंडक्टिविटी के कंडीशन में आपने क्या रखा था, आपने 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन का कंडक्टेंस चेक किया था। The volume of the solution was 1 milliliter. अब यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम V milliliter है, it is not fixed, but the concentration is going to be fixed. The number, not concentration, but we should say the number of moles is fixed. इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट लोगे वो इलेक्ट्रोलाइट आपका कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। तो फाइनली नाउ we can define the molar conductivity which is denoted by lambda m. मोलर कंडक्टिविटी बच्चों क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है कि किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में where the distance between the 2 electrodes is 1 centimeter and the volume is V ml, V cubic centimeter, and 1 mole electrolytes उसके अंदर भरा हो, तो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है
that is called molar conductivity. So molar conductivity may be finally defined as molar conductivity of a solution at a dilution V is the conductance of all the ions produced from 1 mole. आपको फाइनली वह नंबर ऑफ मोल फिक्स रखना है, 1 मोल रखना है, डिजोल्व इन V सेंटीमीटर, V क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का वॉल्यूम V क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल होंगे, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है. एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड आप चाहे जितना रखो ताकि आपका जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में आ जाए. तो यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ मोलर कंडक्टिविटी. सो नाउ वी हैव टू डिराइव सम एक्सप्रेशन. कुछ एक्सप्रेशन डिराइव करना है बच्चों. आप जानते हो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम. इज इट क्लियर? अगर आप नंबर ऑफ मोल को 1 रखोगे, नाउ जस्ट कीप हियर 1, तो आप क्या मिलेगा, मोलरिटी इज इक्वल टू यू विल गेट 1 बाई वॉल्यूम. वॉल्यूम इन लीटर, अगर मिली लीटर करोगे तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करोगे. फाइनली वॉल्यूम इज इक्वल टू बच्चों आपको क्या मिल गया, 1 बाई एम मिल गया. दिस इज द कॉन्सेप्ट, 1 बाई एम. अगर आपको ये मिली लीटर में वॉल्यूम है, यहाँ तो वॉल्यूम आप गेट कर रहे हो लीटर में, मिली लीटर में करना होगा तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 1000. इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1000 बाई एम मिली लीटर. दिस इज द वॉल्यूम. क्लियर? नाउ जस्ट सी कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बताते हैं. कंडक्टिविटी में आप क्या लिखते हो, 1 ml. जस्ट यू से दैट कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. 1 ml इलेक्ट्रोलाइट्स था, 1 ml अगर वॉल्यूम का था सॉल्यूशन का, तो इट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. उसको आप क्या कह रहे थे, कप्पा कह रहे थे. अब आपका वॉल्यूम कितना है बच्चों, 1000 बाई एम मिलीलीटर है. तो 1000 बाई एम यही आपका तो वॉल्यूम है ना, इसके अंदर जो है उस इसके अंदर जो वॉल्यूम भरा हुआ है, तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी क्या होगी, कप्पा मल्टीप्लाइड बाई 1000 बाई एम. दिस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी. यानी लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई एम. यूनिट अगर आप डिराइव करना चाहो तो कप्पा का यूनिट बच्चों आपने क्या लिखा था, सीमेंस पर मीटर. मोलरिटी का क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, और पर लीटर को आप क्या लिखते हो, मोल पर क्यूबिक मीटर. ये लिखते हैं ना, तो पर क्यूबिक मीटर को ऊपर कर दीजिए तो आपको यूनिट मिल जाएगा. इज इट क्लियर? देख लीजिए मोलर कंडक्टिविटी का ये फॉर्मूला कैसे आया, ये अभी हमने आपको डिराइव करके दिया. एक्चुअली सी क्या है आपका, सी इज कंसंट्रेशन. सी आपका कंसंट्रेशन है, सी की जगह आप मोलरिटी भी रख सकते हैं. मोल पर लीटर की बात करते हैं हम लोग तो कंडक्टिविटी के हो गया, या मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी बाई कंसंट्रेशन. ठीक है ना. यहाँ पर आप देखो के इंटू 1000 ml बाई एम है, तो एम क्या है, मोलरिटी है, तो आप क्या कह सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा. यहाँ के लिखा हुआ बट इट शुड बी कप्पा के, और नीचे में आपकी मोलरिटी मतलब कंसंट्रेशन. अगर 1000 ml की बात नहीं करते हम, तो यह मिलीलीटर में वॉल्यूम ले रहे हैं तब है. तो सी फॉर कंसंट्रेशन, ये आपको एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ मिलेगा. कंसंट्रेशन का मतलब है यू हैव टू फाइंड द मोलरिटी. इज इट क्लियर? तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा. आपको यूनिट की बात मैं कर रहा था, अभी मैंने यूनिट आपको निकाला. यूनिट मैंने पूरा नहीं क्लियर किया. एस पर मीटर, ये आपका यूनिट किसका है, कप्पा का है. नीचे में मोल पर लीटर या पर मीटर क्यूब हो गया, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, एस पर मीटर, और मीटर क्यूब को ऊपर करेंगे. ठीक है ना, पर मीटर क्यूब है ना, तो इसको ऊपर कर दीजिएगा, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, नीचे में मोल रहेगा. हाँ, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सीमेंस पर मीटर स्क्वायर पर मोल. इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप दो फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है, तो इस तरीके से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर यूनिट हमारा क्या आ गया, मोलर कंडक्टिविटी का. तो बच्चों मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट आ गया सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल. ओके, या सीमेंस
पर मोल मीटर स्क्वायर। यहाँ ये देखिए पर मीटर क्यूब में था, ये ऊपर चला गया। ये आपको इस तरीके से यूनिट आ गई। अब अपने को न्यूमेरिकल कुछ देखना है बच्चों। दो फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पहला हो गया मोलर कंडक्टिविटी का, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा कंडक्टिविटी बाई कंसंट्रेशन, और दूसरा है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा मोलरिटी इंटू 1000। इसी दो फार्मूला पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हमारा एक न्यूमेरिकल है जो हम कर देखते हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक का है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.1 मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन। आपको एक कंडक्टिविटी सेल है जिसका कि आपको दिया गया है मोल पर लीटर, मीन्स इट इज मोलरिटी। वो उसका रेजिस्टेंस कितना दिया गया, 100 ओम दिया गया है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विथ 0.02 मोल पर लीटर। अब आपका कंसंट्रेशन चेंज किया गया, तो उसके बाद उसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है 520 ओम आ रहा है। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है इस सेकेंड वाले सॉल्यूशन का, 0.02 मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन का। और जो पहला सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी यानी 0.1 मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी आपको दी गई है। तो बच्चों एक चीज़ ये याद रखो, जब आपको कंडक्टिविटी निकालनी होती है और कंडक्टेंस दिया हुआ रहता है, तो आपको चूंकि रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो रेजिस्टेंस से आप बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टेंस हो जाएगा। और कंडक्टिविटी दी गई है, आप वहाँ देखो लेंथ L/S, सेल कांस्टेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आप बात क्या करते हो, G इज इक्वल टू कप्पा इंटू A/L। A/L क्या है, आपको सेल कांस्टेंट है, यानी अगर आप कहोगे तो कप्पा इज इक्वल टू G इंटू L/A। ये L/A सेल कांस्टेंट है, तो आपको सबसे पहले सेल कांस्टेंट की जानकारी होनी चाहिए। अगर सेल कांस्टेंट की जानकारी हो जाएगी तो फिर आप फर्दर दूसरे वाले फार्मूला यूज़ कर सकते हो। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, आपको ये हो गया सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर, कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस हो गया। दोनों को कंडक्टिविटी की वैल्यू रख दीजिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू रख दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन, आप सेल कांस्टेंट इनटू रेजिस्टेंस, फिर से ये फार्मूला आप लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको वैल्यू रखना है, ये आपको जी स्टार क्या है, दिस इज सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट बाय रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो दिया गया है 520 ओम दिया हुआ है, और सेल कांस्टेंट आपने ऊपर में पहले लिखा है, जिसको मैंने शुरू में कहा कि सेल कांस्टेंट सबसे पहले अपने को निकालना है। अब ये फार्मूला कैसे आया, तो देखो अभी फिर से इसको एक बार देख लो। रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो इंटू L/A। L/A तो सेल कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पर अगर आप कंडक्टिविटी करेंगे, रो का रेसिप्रोकल सिर्फ लेंगे, R इज इक्वल टू 1/रो, तो ये R इज इक्वल टू 1/रो करेंगे L/A, या आप ऐसा कर सकते हो कि रो इज इक्वल टू, ये L/A को आप क्या लिखोगे, L/A को आप लिख दो सेल कांस्टेंट, तो R इज इक्वल टू रो इंटू सेल कांस्टेंट हो गया G स्टार। आगे बात समझ में। अब आप इसको क्या करेंगे, इधर लेके चले आएंगे, R/G स्टार, R/G स्टार सेल कांस्टेंट हो गया इज इक्वल टू रो। तो रो क्या है आपका, रो आपका है रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कंडक्टिविटी मिलेगा। इज इट क्लियर। तो रेसिप्रोकल जब करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कंडक्टिविटी मिल जाएगा। इज इट क्लियर। तो अब इसके बाद आप पहला काम आपका क्या है, सेल कांस्टेंट निकाल लेना। सेल कांस्टेंट सबसे पहले आप निकालेंगे, उसके बाद फिर आप क्या निकालोगे, कंसंट्रेशन 0.02 मोल पर लीटर दिया हुआ है, इसको क्यूबिक मीटर में चेंज कर लीजिए। फिर मोलर कंडक्टिविटी का, चूंकि आपको कंडक्टिविटी मालूम हो गया है, कंसंट्रेशन मालूम है, तो आप फार्मूला यूज कर लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, ओके। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस। तो हमने यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल ली और कंडक्टिविटी भी निकाल ली।
इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया ना? देखिए यहाँ से अगर आप किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन है तो आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी स्टार बाई आर हो जाएगा, और ये इधर 1/ρ हो जाएगा, और ये जी स्टार बाई आर और 1/ρ इज इक्वल टू क्या हो गया, कप्पा हो गया, कंडक्टिविटी हो गई। यही फॉर्मूला तो यूज करना है आपको, ठीक है? सबको समझ में आ गया? और यहाँ से क्या आता है, जी स्टार इज इक्वल टू कप्पा कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। जो ये पहला फार्मूला हमने यूज़ किया है वो ये है, दूसरा फार्मूला जो यूज़ किया वो ये है, डेरिवेशन तो यहीं से आ जाता है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा। अब आपके पास कुछ होमवर्क में ये न्यूमेरिकल्स हैं, दिस आर फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, जस्ट डू इट, सॉल्व इट, ओके। सो नाउ थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके बाद हमारा एक लास्ट सेशन वीडियो होगा बच्चों, जिसमें हम कुलरॉक्स लॉ की बात करेंगे और वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ कुलरॉक्स लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। और आप मेरे ब्लॉग पर जाइए, ऑल वीडियोज़ फॉर ऑल चैप्टर्स taught till now are available on this blog, so have a